Hello everyone, hope you're doing great. So this article that we are going to study next is about the IPCC sixth assessment जो अभी भी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है. तो recently to give you a backdrop कि क्या हुआ है, there has been the sixth assessment report of the Intergovernmental Plan on Climate Change IPCC जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है. And it will be in the news for quite some time now because the revelations and the things that are being told, they're very important for us to understand climate change from a perspective of India as a country. So first of all तो हमें समझना है कि it is first of all telling us कि there's a international awareness of the nature and the intensity of climate change, and in mobilizing national and international action to deal with the challenge. So what we have to do is that first of all example में अगर हम history में देखें तो कहाँ से ये total start हुआ था. It started from the UN framework, the UN framework convention on climate change. And just a minute, yes, US framework convention on climate change that inspired and informed, just a minute, yes, all right. So US Framework Convention on Climate Change that inspired and informed by the first IPCC report of 1990 that drew attention to the accelerated pace of climate change and the urgency of tackling it through collaborative multilateral action based on equitable burden sharing. So these are some words जो आप आंसर राइटिंग के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो. Tackling through collaborative multilateral action based on equitable burden sharing. Next thing है the special report on 1.5 degree Celsius issued in 2018 led to the implicit adoption of lower target of 1.5 degree Celsius for over for average rise in global temperature rather than 2 डिग्री का जो लिमिट हमने पहले लिया था पेरिस एग्रीमेंट में ऑफ 2015, एंड 1.5 हमारा एस्पिरेशनल टारगेट था. नाउ लुकिंग एट द सीरीज ऑफ आईपीसीसी, climate change is a result of man-made activities, in particular the adoption of fossil fuel based energy system. सेकेंड जो इसमें लिखा है एबिलिटी टू टैकल क्लाइमेट चेंज लाइज इन द सक्सेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी सिस्टम अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. बेसिकली ये बता रहे हैं हाउ आईपीसीसी इज टेलिंग अस टू फाइट climate change. This is happening too slowly to make a difference. Climate change taking place accelerated pace है climate change की. Impacts will be severe in the tropical and subtropical zones of the planet. So that is why India is also at the verge of having major effects of climate change on itself. So there are going to be irreversible and catastrophic changes in the planetary ecology. And climate change impacts phenomena has become complex here because it is through feedback loops with ecological degradation, biodiversity loss, and population growth. So three things that are aggravating this problem of climate change are first of all ecological degradation, biodiversity loss, and population growth. सिक्स्थ रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इट रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्लाइमेट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. तभी ये आर्टिकल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स अस इन जिस्ट एक्चुअली कि क्यों सिक्स्थ रिपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, बिकॉज ये एक इंटरडिपेंडेंसी बता रही है क्लाइमेट की, इकोसिस्टम की एंड बायोडाइवर्सिटी की. तीनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं आपस में, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस. सो क्लाइमेट, biodiversity and ecosystem. So biodiversity, ecosystem and climate, all three are interconnected. The report goes even further, spelling out how climate change is now part of much larger ecological challenge related to biodiversity loss, overall unsustainable consumption of natural resources, land and ecosystem degradation, rapid urbanization, human demographic shift, social and economic inequalities, and of course the pandemic.
तो बेसिकली बताया कि एग्रीवेट कैसे हुआ क्लाइमेट चेंज और जिसकी वजह से अब और प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं। व्हाट द रिपोर्ट कॉल्स कपल सिस्टम्स अमंग क्लाइमेट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटी। सो एक और इंटर रिलेशन बताया है बिटवीन जस्ट अ मिनट, यस, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, और पहले बायोडाइवर्सिटी था, अब यहाँ पे है ह्यूमन सोसाइटी। तो ये आप यूज कर सकते हो फॉर इकोलॉजी, एनवायरमेंट, every answer this can be used. Now the implications are clear. Unless there is a change in human and societal value system, it would not be possible to transition from a resilient and sustainable ecosystem. Beyond technological transformation, there must be transformation of society and its values and its aspiration. So these are the solutions. Now रिपोर्ट ने 3 फेजेस कंसिडर्ड किए हैं क्लाइमेट चैलेंज के, ठीक है। 3 टाइम पीरियड इससे हम कह सकते हैं, 3 टाइम पीरियड कंसिडर किए हैं क्लाइमेट चैलेंज के। फर्स्ट है 1850 से 1900 का पीरियड। सो फर्स्ट पीरियड है 1850 से 1900 का पीरियड, जिसको कहते हैं, हमने बेस माना है जिसको। अब यहाँ से 2021 से 2040 तक का जो पीरियड है उसको हम नियर टर्म फेज कहेंगे। 2041 से 60 तक, मतलब 20-20 साल का गैप ले रहे हैं। और उसके बाद है 61 to 80, तो ये है मिड टर्म और ये है लॉन्ग टर्म। करंट पीरियड 2011 से 2020 का जो चल रहा है इज ऑलरेडी सीन ए टेम्परेचर राइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस का इसमें टेम्परेचर राइज हो चुका है। एंड दैट देयर इज अ ग्रेटर देन 50% लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी, चांस है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 मतलब 1.5% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इन द नियर टर्म। नियर टर्म का मतलब है कि 2021 से 2040 के बीच में 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जो आपका एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है। नाउ अब इसके इम्प्लीकेशन जो हैं वो इंडिया पे कैसे पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब सी लेवल राइज होंगे तो जो हमारे की कोस्टल एरियाज है लाइक मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये सारे सबमर्ज हो जाएंगे, ये एंडेंजर्ड हैं इस समय। दूसरी चीज़, लार्ज स्केल क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इनलैंड और बॉर्डर्स के क्रॉस, जो मतलब 40 मिलियन तक पहुंच सकती है 2050 तक। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो हमारे लिए सबसे बड़ा है वो है इम्पैक्ट एज रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन द हिमालयन जोन। जो हिमालयन जोन में ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ग्लेशियर लेक जो वहाँ पे बनी हुई है उनका आउटबर्स्ट शुरू हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर। और जो पेरिनियल स्नो फेड जो रिवर्स हैं आपकी, जो गंगा यमुना जो ग्लेशियर्स से फेड हो रही हैं, उनके अंदर सीजनल फ्लो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनमें फ्लडिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ एरियाज़ में जब वहाँ पे पानी ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा, वाटर स्केर्सिटी भी आ जाएगी, और उसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली डेंसली जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। There will be significant health impacts as the frequency and intensity of heat waves will increase in a tropical zone. तो मतलब जो आपका गोवा जाने का प्लान है वो भी कैंसिल करना पड़ेगा because of the severe heat waves जो होने वाली हैं in the subtropical and tropical zones. The report has included some promising examples of successful mitigation, but जो steps अभी लिए गए हैं वो very few हैं और very far between हैं सेव करने के, मतलब बहुत ही मुश्किल हैं। दीज आर लाइक बैंडेड्स, मतलब ये आप लाइन को आप एज इट इज़ यूज़ कर लोगे, आपके 1 मार्क तो पक्का ही एग्जाम्स में, बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल। दीज आर लाइक बैंडेड्स ऑन द वुंड दैट इज स्प्रेडिंग एंड फेस्टरिंग। नेक्स्ट है, देर इज अ नैरोइंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एनेबल क्लाइमेट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी बचा लिया तो बचा सकते हैं, वरना वी आर ऑल गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस। बोथ टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एक्शन एज वेल एज मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, अगेन ये एक सोल्यूशन के अंदर आता है। एक्सेलरेटेड शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स करने हैं हमने एंड क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने हैं हमको, ताकि हमारी इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ ग्लोबल एक्शन में। जब हमने एक प्लान निर्धारित किया है 2030 या 2050 तक, ज़ीरो कार्बन, नेट कार्बन जो हमारा ज़ीरो है वो होना चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू लीड टू दैट। अब प्रॉब्लम क्या है,
राइट नाउ द सिचुएशन इज इवन द प्राइसेस ऑफ कोल हैव गॉन अप, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन की वजह से चल रहा है अभी, ऑयल प्राइसेस जो हैं अभी हाई रखे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो हमारे ड्रेन हो रहे हैं। एंश्योर दैट द लेटेस्ट जियो पोलिटिकल क्राइसिस, तो ये तो अभी करंट सिचुएशन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस आर्टिकल के अंदर आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सबसे रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सकती है। सो दैट इज़ वाई गो थ्रू दिस आर्टिकल. This was a brilliant article to understand uh, and read actually that what is IPCC sixth assessment. Try to read it. Let us know in the comment section if we have missed something. And that's it. All the best for exams. Do like and share the video and subscribe to the channel if you haven't yet. And thank you everyone for supporting us. All the best for exams.